Hello dear students, I am Professor Brajesh Bagri and from today we are going to continue with the 10th chapter of 12th class mathematics, vector algebra. So we start with the basics of vectors. First topic is what are vectors. So as we know, quantities that have magnitude as well as direction are vectors. ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है. यू आर वेरी वेल अवेयर विद दिस डेफिनेशन. एंड द क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर नोन एज स्केलर्स. सो एग्जांपल, सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ vector quantities we come across in physics and chemistry are displacement, velocity, force, acceleration, momentum, electric field intensity, magnetic field intensity, etc. Now representation of a vector. So a vector is represented by a line which is starting from a point which is known as initial point and which terminates at any point is known as terminal point, and this terminal point is represented by an arrowhead. So it is basically a ray, and the initial point is represented as A here and final point is represented as B. So this vector is AB vector. This is known as AB vector. Distance between initial point and terminal point is called magnitude or the length of vector. ये जो आप डिस्टेंस देख पा रहे हैं ए और बी के बीच का, ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है, बी इज़ टर्मिनल पॉइंट. तो ए और बी के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल लेंथ होती है, दैट इज़ नोन एज magnitude of the vector, and magnitude is denoted by this operator which is known as modulus operator or mod operator. So mod of AB or magnitude of AB. Magnitude is never negative because modulus operator always produces a positive quantity. So magnitude or length is always a positive quantity. Then position vector. Now what is position vector? Position vector का मतलब है the vector which specifies the position of a point in space with respect to origin is called position vector. origin के respect में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने वाले वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं. लाइक यहाँ हमने स्पेस में एक पॉइंट कंसीडर किया है, पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और ये जो पॉइंट पी है इसका डिस्टेंस ओरिजिन यानी कि ओ से है ओ पी. सो दिस ओ पी वैक्टर इज़ नोन एज position vector and it is represented by r vector. Small r vector is the position vector. So we can consider or represent it by r vector as well as by its name, that is OP vector. So OP vector which is equals to r vector is the position vector of point P, and position vector is given by this representation xi plus yj plus zk. Here x, y, z are the values, are the coordinates of point P, and I, j and k cap, I cap, j cap and k cap are the unit vectors along x direction, y direction and z direction. दैट मीन्स आई कैप जो होता है वो एक्स का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, जे कैप वाई का डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है और के कैप जेड का डायरेक्शन स्पेसिफाई करता है. सो दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज डायरेक्शन एंगल्स एंड डायरेक्शन कोसाइंस. सो द एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा मेड बाय आर वेक्टर विथ पॉजिटिव डायरेक्शंस ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल्स. यू कैन सी इन दिस फिगर, ये जो ओ पी वैक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है बीटा, और जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है गामा. सो दीज अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर नोन एज डायरेक्शन एंगल्स. डायरेक्शन एंगल्स का मतलब क्या हुआ? पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो अल्फ़ा, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो बीटा, और पॉजिटिव जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो गामा. ओके, नाउ द कोसाइन वैल्यूज ऑफ डायरेक्शन एंगल्स दैट इज कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. अब डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं वो हमने समझा. अल्फ़ा, बीटा, गामा जो होते हैं वो डायरेक्शन एंगल्स होते हैं. उन अल्फ़ा, बीटा और गामा का अगर हम कॉस ले लें, कॉस मतलब कोसाइन ले लें, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस. So direction cosines are nothing but simply the cosine values of direction angles. अल्फ़ा, बीटा, गामा का cos ले लेना है तो बन जाएगा cos अल्फ़ा, cos बीटा and cos gamma, and these direction cosines are represented by L, M, N, letters L, M and N. So L is equals to cos alpha, M is equals to cos beta and N is equals to cos gamma. Now direction ratios. What are direction ratios?
सो डायरेक्शन रेशोज़ डिफ़ाइन करने के लिए हमने क्या करा, ये जो ओपी वेक्टर है इस ओपी वेक्टर से कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करें। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करा जेड एक्सिस के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा वाई एक्सिस के ऊपर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एक्स एक्सिस के ऊपर। देखिए अब वाई और जेड के परपेंडिकुलर्स तो आपको बहुत इजीली नज़र आ रहे हैं, लेकिन जेड एक्सिस का परपेंडिकुलर इसलिए नज़र नहीं आ रहा है अच्छे से क्योंकि ये जो फिगर हमने ड्रॉ किया हुआ है ये एक्चुअली है 3D फिगर, लेकिन हमने इसको 2D में ड्रॉ किया है। ये जो एक्स एक्सिस आप ऐसी स्लांटेड बनी हुई देख रहे हैं ना, ये ऐसी नहीं है, ये इस स्क्रीन से बाहर आती हुई है। एक्स वाई एक्सिस इस स्क्रीन के ऊपर है, जेड स्क्रीन के ऊपर है, जबकि एक्स एक्सिस स्क्रीन से बाहर आ रही है, लेकिन वो आपको दिख ऐसी रही है। तो आप ये जेड वाला कॉन्सेप्ट अभी भूल जाएं, अभी हम एक्स और वाई से समझेंगे तो जेड के लिए तो वही परसीव करेंगे हम। ओके, सो नाउ सबसे पहले हम ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, बीटा वाला ट्रायंगल, जो बीटा एंगल वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। इस ट्रायंगल में आपने ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई की। सो कॉस बीटा की वैल्यू हम देखेंगे। कॉस बीटा क्या हो जाएगा, कॉस बीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल का बेस कितना है वाई और हाइपोटेनियस है इसकी आर। ये जो पोजीशन वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड आर है, ये दिख रहा है यहाँ पर आर। सो कॉस बीटा इज इक्वल्स टू वाई बाय आर। फिर यहाँ पर कॉस बीटा वाई बाय आर है, तो कॉस बीटा को क्या बोलते हैं हम एम, तो एम इज इक्वल्स टू वाई बाय आर। और यहाँ से यहाँ पर लिखी हुई है वैल्यू, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली एम आर। वाई की वैल्यू क्या आ गई, एम आर। ठीक है, अब सिमिलरली अब हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में जो एंगल है वो है गामा एंगल के लिए हम निकालते हैं। तो कॉस गामा इज इक्वल्स टू, अगेन फार्मूला इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस इज z एंड हाइपोटेनियस इज r, z बाय r। सिमिलरली वी कैन फाइंड कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी x बाय r। ठीक है, अब यहाँ पर कॉस बीटा की जगह m रख दिया, कॉस गामा की जगह n रख दिया, कॉस अल्फ़ा की जगह l रख दिया। और अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल्स टू एल आर। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल्स टू एम आर। और यहाँ से z की वैल्यू में निकाल ली, z इज इक्वल्स टू एन आर। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ आ गई। एक्स वाई जेड मतलब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, एक्स वाई जेड। सो द नंबर्स एक्स वाई जेड, दैट इज एल आर, एम आर एंड एन आर, which are proportional to the direction cosines. Obviously these are proportional to direction cosines. यहाँ देखिए, यहाँ पर L में R का मल्टीप्लाई कर दिया, एल आर, M में R का मल्टीप्लाई कर दिया, N में R का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये एल एम एन के प्रोपोर्शनल है या नहीं। सो दीज नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस एंड दीज आर नोन एज डायरेक्शन रेशोज। सो दीज नंबर्स एल आर, एम आर एंड एन आर नोन एज डायरेक्शन रेशोज। इन्हें हम डायरेक्शन रेशोज कहते हैं। डायरेक्शन रेशोज are represented by small letters a, b and c. A is equals to lr, b is equals to mr and c is equals to nr. Now there is a property of L, M and N which is L square plus M square plus N square is always equals to 1. Now we will going to prove this property. In the last derivation we have derived that L is equals to x by r, M is equals to y by r and N is equals to z by r. ये वैल्यूज़ हमने निकाली। अब हमें प्रूव क्या करना है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हमने यही वैल्यू ली, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एल एम एन की जगह वैल्यूज़ पुट कर दी, एक्स बाय आर का होल स्क्वायर प्लस वाई बाय आर का होल स्क्वायर प्लस जेड बाय आर का होल स्क्वायर। इनका स्क्वायर किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, उसके बाद एलसीएम ले लिया तो ये मिल गया। अब इसमें आर क्या था, आर था मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ओपी। हमने पीछे फिगर देखा था, आर जो है वो ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। देखिए ओपी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड है आर, तो आर क्या है, ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब आर की जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वेक्टर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होती है मैग्नीट्यूड की वैल्यू। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो क्या मिल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी उसमें हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। लास्ट इक्वेशन क्या थी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम आर स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और आर स्क्वायर कैंसिल होकर फाइनली मिल जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. So this has been now proved. Now next topic is types of vectors. अब vectors अलग अलग तरह के होते हैं जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़
ज़ीरो वेक्टर, जैसा नाम से ही समझ में आ रहा है, ज़ीरो वेक्टर मीन्स अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ ज़ीरो वेक्टर। कोई ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल दोनों ही पॉइंट एक के ऊपर एक कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वो कहलाता है ज़ीरो वेक्टर या नल वेक्टर, या फिर उसे हम डिनोट करते हैं इस तरह से, ज़ीरो के ऊपर वेक्टर का सिंबल बना देते हैं, ज़ीरो वेक्टर। ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी असाइंड अ डेफिनेट डायरेक्शन बिकॉज इट हैज़ ज़ीरो मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है, इसीलिए इसकी कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होती। यहाँ पर ये मैंने पॉइंट ड्रॉ कर दिया, तो इसी पॉइंट के ऊपर इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करेंगे। सो दिस इज़ ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर को हम ज़ीरो से तो रिप्रेजेंट करते ही हैं, साथ में हम इसको ए वेक्टर बी वेक्टर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ए वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो भी ए है और टर्मिनल पॉइंट भी ए है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज ज़ीरो वेक्टर, ए वेक्टर। अगर यहाँ बी वेक्टर देखें तो इसका मतलब भी यही हुआ कि इनिशियल और टर्मिनल दोनों ही पॉइंट्स बी हैं, सो दिस इज़ बी वेक्टर। नाउ नेक्स्ट इज़ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा है, यूनिट का मतलब होता है वन। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट ही होता है, यानी कि वन होता है, उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होता है, यानी कि वन यूनिट होता है, तो यूनिटी होता है, उसे हम कहते हैं वेक्टर। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए कैप से, यहाँ पर ये कैप लगा दी जाती है। अब यूनिट वेक्टर किस काम में आता है? यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के काम में आता है, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड तो वन है। तो इस ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर, उसको ए कैप से रिप्रेजेंट किया और उसका मैग्नीट्यूड हो गया वन। देखिए अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। जब भी किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए तो बन जाता है यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब यहाँ से इस मैग्नीट्यूड को ले जाके इस यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ए वेक्टर का फॉर्मूला बन गया मॉड ऑफ ए इंटू ए कैप। ए कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर किस काम में आता है? डायरेक्शन बताने के काम में आता है। तो यहाँ पर ये जो ए मॉड है, मॉड ऑफ ए, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो ए कैप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। और अभी अभी हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिनमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। नाउ को इनिशियल वेक्टर्स, अगेन नाम से ही क्लियर है, को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब है ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, उन्हें कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे यहाँ पर ए बी और सी वेक्टर आप देखेंगे तो इन तीनों वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट बिल्कुल कॉमन है, सेम है, तो दैट्स वाई दीज वेक्टर्स आर नोन एज को इनिशियल वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज कोलीनियर वेक्टर्स। कोलीनियर वेक्टर्स का मतलब ही है, फिर नाम से क्लियर है, कोलीनियर मीन्स जो सेम लाइन में हो। तो यहाँ पर सेम लाइन का अर्थ है टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलीनियर वेक्टर्स इफ़ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन पे कभी भी कोलीनियर वेक्टर्स डिपेंड नहीं करते हैं। कोलीनियर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर्स जो एक सिंगल लाइन के पैरेलल हों, उन्हें कहा जाता है कोलीनियर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं, यहाँ एक लाइन को हमने डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट की है। अब डॉटेड लाइन के पैरेलल ए वेक्टर भी है, बी वेक्टर भी है, हालांकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलीनियर वेक्टर। वाई? बिकॉज दीज आर पैरेलल टू द सेम कॉमन लाइन। देन हियर इन द सेकेंड फिगर सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर पैरेलल टू दिस डॉटेड line, but their directions are same. Again, these are collinear vectors. Now next is equal vectors. देखिए अब इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है? टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। इक्वल का मतलब ही है, सबसे पहली बात तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए इक्वल वेक्टर्स का, एंड डायरेक्शन, और उनकी डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो गई तो इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स चेंज हो जाएंगे। सो इक्वल वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी सेम होता है और डायरेक्शन भी सेम होती है, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट कहीं भी रखा हो सकता है, जैसे यहाँ फिगर में देखिए ए और बी दोनों के इनिशियल पॉइंट्स अलग अलग हैं, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। और इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको इक्वल सिम्बॉल से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर। सो दीज आर इक्वल वेक्टर्स। नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है? अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ अ गिवन वेक्टर बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ इट इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ गिवन वेक्टर। देखिए इसको बहुत सिंपली हम इस फिगर के थ्रू समझ सकते हैं। ये है ए बी वेक्टर, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, सो दिस इज ए बी वेक्टर। अब हमने क्या किया, जो इसका इनिशियल पॉइंट था वो इसका फाइनल बन गया, जो इसका फाइनल पॉइंट था वो इनिशियल बन गया।
तो ये बन गया बी ए वैक्टर। तो इस बी ए वैक्टर और ए बी वैक्टर में क्या रिलेशन हो गया, बी ए वैक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए बी वैक्टर। वाई बी ए वैक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए बी वैक्टर, बिकॉज बी ए वैक्टर एंड ए बी वैक्टर बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट देयर डायरेक्शंस आर अपोजिट, सो दीज आर नोन एज नेगेटिव ऑफ ईच अदर। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन कमेंट और यू कैन आस्क एट माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।